Okay, dear students, today we are starting the unit number 4, that is the measurement of resistance. The resistance is the very important component that is used in designing of the electrical and electronic circuit. Now we can classify the resistances on the basis of their values, like the low resistance, medium resistances, and high resistances. Low resistances are in the range of 1 ohm and under. तो 1 ओम से कम ओम तक की वैल्यू के रेजिस्टेंसेज को हम लो रेजिस्टेंस बोलते हैं. मीडियम रेजिस्टेंसेज कम इन द रेंज ऑफ 1 ohm to 100 kilo ohm. These come in the range of the medium resistances, and high resistances come up to the 100 kilo ohm and above that come in the high resistances. So these are the three classification of the resistances. Now first we will see the method of measurement of medium resistances. So there can be three methods of measurement of medium resistances. These are the substitution method, Wheatstone bridge method, ammeter voltmeter method. First we will discuss the substitution method. In the substitution method, what is happening? It is the electronic circuit of the substitution method. As shown in the figure, there is a ammeter. यहाँ पर हम एक ammeter यूज करते हैं, एक स्विच यूज हो रहा है. These are the two resistances. S is the standard resistance and R is the unknown resistance which we want to measure. B is the battery in the circuit. R is the adjustable resistance. So these are the component used in the substitution method. So that is shown in the diagram. Here R is the unknown resistance, S is a standard variable resistance, A is the ammeter, R is a regulating resistance, B is the battery, and switch to put R and S alternatively in the circuit. Switch is S is the कि हम R और S में से किसको हम सर्किट में रखना चाहते हैं. So what is the working procedure of measurement of resistance with this substitution method? That we will see. So firstly, what will happen? The switch is put at position 1 and resistance R is connected in the circuit. सबसे पहले हम 1 पोजीशन पर स्विच को कर देते हैं, तो हमारा जो सर्किट है वो इस तरह से ये वाला रेजिस्टेंस हमारा लाइन में आ जाता है और दैट रेजिस्टेंस इज डिस्कार्डेड. इस रेजिस्टेंस को हम डिस्कार्ड कर देते हैं. तो इस सर्किट में अगर हम देखें तो हमने R को पुट किया. नाउ R इज एडजस्टेड सो दैट वी कैन रीड द वैल्यू ऑफ करंट ऑन अमीटर. इस अमीटर पर हम करंट की वैल्यू को रीड कर पाए. सपोज द करंट रीड ऑन द अमीटर इज 2 एम्पियर. इस पर हम 2 एम्पियर को रीड कर लेते हैं यहाँ पर. तो दैट इज टेलिंग हियर कि फर्स्ट द स्विच इज पुट एट पोजीशन 1 and resistance R is connected in the circuit. The regulating resistance R is adjusted till the ammeter pointer is taken as a chosen scale mark. Now the switch is thrown to position 2. अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर अमीटर की वैल्यू को रीड कर लिया कि यहाँ पर हमारा 2 एम्पियर डिफ्लेक्शन आ रहा है जब हम R अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लें. अब हम क्या करते हैं, स्विच की पोजीशन को चेंज कर देते हैं. नाउ वी कनेक्ट द स्विच नंबर 2 with second number point. Now the standard register, this register will come in the line. Now ये हमारा जो स्विच एस है वो इस 2 नंबर के पॉइंट पर कनेक्ट होने के बाद ये हमारा स्टैंडर्ड रजिस्टर है, ये हमारा लाइन में सर्किट में आ जाता है. इसके आने से क्या होगा,
इस सर्किट के कनेक्ट होने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी circuit like this. Now we adjust the value of S. बैटरी को हम उतना ही रखते हैं जितना पहला था बैटरी की सेटिंग, R को उतना ही रखते हैं, S को, S इज एडजस्टेबल, तो S को हम ऐसी वैल्यू पर सेट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा ये करंट है वो पहले के बराबर हो जाए। तो पहले के बराबर होने का मतलब हमारा 2 एम्पियर करंट है वो सेट हो जाए। पहले भी हमारा 2 एम्पियर था, तो इसका मतलब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो एस की वैल्यू होगी जो डायल पर हम रीड करेंगे वही आर की वैल्यू होगी इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो वी वांट टू से दैट switch is thrown to position 2. Now putting the standard variable resistance S in the circuit. The value of S is varied till the same deflection as was obtained with R in the circuit is obtained. The setting of dial of S are read. अब हम S की सेटिंग को रीड कर लेते हैं। Since the substitution method of one resistance for another has left the current unaltered, इसमें हमारा करंट है वो अनअल्टर्ड रहता है, तो हमको ये सेफ्टी रखनी है हमारी बैटरी है वो कांस्टेंट रहे। प्रिकॉशंस इन द सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं। एक्यूरेसी ऑफ दिस मेथड is destroyed if there is any change in the battery EMF during the time the readings on the two settings are taken. अगर बैटरी के EMF में कोई चेंज हो जाता है, बैटरी के EMF में, तो हमारा ये सेटिंग चेंज हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा जो करेक्ट वैल्यू है वो हमारी नहीं आ पाएगी। Thus, in order to avoid error on this account, a battery of ample capacity should be used so that its EMF remains constant. जिससे कि इसका जो EMF है वो हमारा कांस्टेंट रह पाए, ऐसी बैटरी को हम चूज करते हैं। Accuracy of this method also depend upon the accuracy with which standard resistance S is known. इस बात पर भी डिपेंड करता है इस मेथड की एक्यूरेसी कि हमारा जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस है वो हमारा एक्यूरेटली नोन हो, क्योंकि अगर हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस एक्यूरेटली नोन नहीं होगा तो जो हमारा आर है वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तो सच टाइप ऑफ प्रिकॉशंस वी शुड टेक व्हाइल मेजरिंग द रेजिस्टेंस। नाउ वी कैन कंक्लूड इट that this is a more accurate method than the ammeter voltmeter method. ये हमारा अमीटर वोल्टमीटर मेथड से ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। The substitution principle is very important and find many applications in the bridge methods and in high frequency AC measurements. तो सब्सटीट्यूशन जो प्रिंसिपल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा कई एप्लीकेशंस लाइक द ब्रिज मेथड्स और हाई फ्रिक्वेंसी एसी मेजरमेंट वगैरह में ये हमारा काम में आता है। नाउ वी विल सी द वन न्यूमेरिकल ऑफ दिस प्रॉब्लम सब्सटीट्यूशन मेथड इन ए मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ए स्टैंडर्ड 0.5 मेगा ओम रजिस्टर वाज यूज्ड. The galvanometer has a resistance of 10 kilo ohm and give deflection as follows. With standard resistor 41 division, with unknown resistance 51 divisions. Find the unknown resistance की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है हमें एस की वैल्यू जैसा कि सर्किट में है, यहाँ पर हम आई की जगह पर वी आर यूजिंग द गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहे हैं और द एस की वैल्यू हमको दी हुई है। एस की वैल्यू हमको 0.5 मेगा ओम वैल्यू इज गिवन ऑफ द एस एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। इस आर की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिकॉज वी नो that the deflection of the galvanometer is directly proportional to the current passing through the circuit.
जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो उसमें से करंट जो पास होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है, एंड हेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब डिफ्लेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट और दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इन रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो वंस सबसे पहले जब हम एक बार अननोन रेजिस्टेंस को इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे तब हमारा रेजिस्टेंस, सपोज G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो हमारा रेजिस्टेंस होगा R प्लस G, दैट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि यहाँ पर R को डिस्कस नहीं किया गया है प्रॉब्लम में। और जब हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S को कनेक्ट करेंगे तब हमारा जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी द S प्लस G, ये रेजिस्टेंस होगा। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस G होगा या फिर S प्लस G होगा। तो इन बोथ द केसेज वी हैव θ1 अपॉन θ2। तो जो θ1 है वो हमारा जब हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं तब हमारा डिफ्लेक्शन है, तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन S प्लस G के प्रोपोर्शनल होगा। और जो हमारा θ2 होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस R प्लस G। अगर हम दोनों को मिलाकर कंबाइंडली हम लिख देते हैं तो दैट विल बी द θ1 अपॉन θ2 विल बी R प्लस G अपॉन S प्लस G। R हमको कैलकुलेट करना है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इजकल टू S प्लस G इंटू θ1, दैट इज द S प्लस G इंटू θ1। R को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस न्यूमेरिकल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इजकल टू R प्लस G और θ2। नाउ θ1 अपॉन θ2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दैट इज द R वी वांट टू कैलकुलेट, तो हमारा जो R होगा दैट विल बी द S प्लस G θ1 अपॉन θ2 माइनस G। S की वैल्यू हमको दी हुई है, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 0.5 इंटू 10 की पावर 6, इसको ओम में कन्वर्ट कर लिया। G की वैल्यू हमको 10 किलो ओम दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द ओम। θ1 is 41, θ2 is 51 minus G, तो that will come the 0.4 मेगा ओम। तो दैट इज द आंसर। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। थैंक यू।